When the word cancer hits an individual or a family, it hits everybody. When I heard the word cancer, took a little time to understand कि ये कैंसर और छवि साथ में बोला जा रहा है, क्योंकि कैंसर तो कुछ ऐसा था जो दूसरों को होता है, हमें तो नहीं होता है, तो हमें तो नहीं हो सकता. फर्स्ट रिएक्शन वाज कि कुछ गलती हुई होगी. What shook? What changed? I think the most important thing that I look back and I think of is कि कभी मैंने दिमाग में वो थॉट मैं नहीं लेकर आई कि अगर ये गलत हो गया तो क्या होगा, जान चली गई तो क्या होगा. आपकी लाइफ में कुछ भी आ सकता है, आपकी फैमिली की लाइफ में भी कुछ भी आ सकता है. अगर आप रोज़ अपनी माइंड को ऐसे इधर 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 लेके जा रहे हैं, रोज़ एनर्जाइज कर रहे हैं, एंड देयर कम्स एन एग्जाम, यू आर बेटर इक्विप्ड. The only person or people who I can say were some kind of strength to me were my kids. उनसे मुझे ये चीज़ सीखने को मिलती थी कि what is patience and what is unconditional love. Because they saw me cry and they would still just come and hug me. केयर गिविंग इमोशनल भी बहुत होती है, एंड वो इमोशनल केयर गिविंग ये है कि आप अपने अपने मन का ध्यान रखो. आपको मेरे लिए ना डरना है, ना चिंता करनी है, ना आगे का सोचना है कि इसको क्या होगा. अगर आप सब भी वही सोचेंगे तो फिर वो मेरी सोच को और बढ़ाएगा, एंड दैट इंक्रीजेस माय सफरिंग. कभी बॉडी नहीं सपोर्ट कर रही है, सिचुएशन नहीं सपोर्ट कर रहा है, पर हमारा माइंड स्ट्रांग रहता है तो वी कैन गो थ्रू. हाउ वुड यू एक्सप्लेन माइंड ओवर मैटर? On our ThinkRight podcast today, in addition to, of course, our guiding light, Sister B.K. Shivani, we have with us someone who is a household name in India, right from films to, a lot of television, to producer, to creator, and, just discussing some time ago, a podcaster and deeply immersed in all the work she does. And all of you will recognize her when you see her face, Chhavi Mittal. She's truly been somebody who's been an iconic person in the entire industry of entertainment here in India. But more importantly, she's here on our ThinkRight podcast because she's one who talks boldly, who talks with a lot of courage about her own challenges and her own journeys, and especially, the one with cancer that she has faced over the last 4 years. Very warm welcome, Chhavi. And I know I emphasized on that last point, because this podcast is truly about, people understanding and appreciating the power of mind, how, the world around you can change, but, how can you champion it and actually talk about it so that you can inspire many others. And I think that quality of yours, truly stands out. But before that, tell us a little bit about, your growing up years and, your childhood and, how you came into the glamour industry, so to say. Thank you so much, first of all. I personally think this introduction part you should leave for later because it kind of puts a lot of pressure on the guest. I have to live up to all those expectations. I hope I'm able to. बचपन की बात करें तो बहुत ही सिंपल मेरा बचपन रहा है. 2 मेरे बड़े भाई हैं और हमेशा बहुत शेल्टर्ड रही हूँ. बहुत सारे लोग थे ध्यान देने के लिए. तो आई थिंक वो जो इंडिपेंडेंस एक होती है, जो एक ग्रोथ होती है जहाँ पे आप अपने डिसीजंस खुद से ले सकें, वो जो मेरी जर्नी थी वो सबसे ज़्यादा लंबी रही है. बिकॉज हमेशा हर किसी चीज़ के लिए कोई ना कोई होता था डिसाइड करने के लिए कि सब्जेक्ट्स ये ले लो, अच्छा ये काम कर लो, यहाँ चली जाओ, खाना ये खा लो, अब ये कर लो, अब ये कर लो, अब ये कर लो. सो एक बहुत ही डिफाइनिंग जो चीज़ थी मेरी पर्सनालिटी की वो वहाँ से आती है. अदर देन दैट आई थिंक एक बहुत दूसरी जो डिफाइनिंग चीज़ मेरी पर्सनालिटी की है वो मेरी मदर से आती है. बिकॉज आई हैव ऑलवेज सीन हर वर्किंग टायरलेसली. कोई हमारे घर में मेड्स नहीं होती थी, हेल्प नहीं होती थी, वो काम भी करती थी, जॉब था उनका, और बच्चों को भी हमेशा उन्होंने पूरी प्रायोरिटी दी है. तो एक वो भी वहाँ से मुझे आता है उनसे ये कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट की काम करना ज़रूरी है फॉर अ वुमन, फॉर अ मैन, फॉर एवरीवन. एंड कोई भी काम करने में कोई शर्म नहीं है. And hard work. I think I'm hardworking because I've grown up looking at her. Wonderful. And how did that transition to what you're doing today, in the area of glamour and entertainment? How did you come into this space? So I think that credit also I'll give to my mother. मैं बहुत ही shy थी शुरुआत से. I think आज भी काफ़ी हद तक
बहुत शाय हूँ. कैमरा ऑन होता है तो वो शाइनेस कहीं चली जाती है, बट इंट्रिंसिकली आई एम अ वेरी रिजर्व्ड पर्सन. और जब पहली बार मुझे मौका मिला था कुछ करने का कैमरा पे, तो मेरी मॉम को मैंने कहा था कि मुझे बुलाया गया है ऑडिशन के लिए, मैं नहीं जा सकती. तो मम्मी ने पूछा कि क्यों? तो मैंने कहा नहीं नहीं, आई डोंट वांट टू मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ. एंड माई मॉम सेड, गो मेक अ फूल ऑफ योर सेल्फ एंड कम बैक. नहीं मिलेगा काम, नो प्रॉब्लम, बट गो मेक अ फूल ऑफ योर सेल्फ एंड कम बैक. और उस दिन से लेकर आज तक माई एजेंडा हैज ऑलवेज बिन दैट ओके, आई एम गोना गो मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ एंड कम बैक. बट दैट हैज बिन अ गेम चेंजर, बिकॉज मुझे उस चीज़ की झिझक नहीं रहती कि लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे मुझ पर. तो मैं उस इंटेंशन से जाती हूँ कि हाँ हंसो, ठीक है. एंड दैट्स हाउ इट ऑल बिगैन. फिर पता चला धीरे धीरे कि दिस इज समथिंग आई एम गुड एट. तो करना शुरू किया, एक काम किया, दूसरा किया. दिल्ली में, मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली में काफ़ी सारे टीवी शोज़ में होस्ट किया करती थी. फिर मुंबई आई तो एक्टिंग शुरू की, मॉडलिंग शुरू की, बड़े बड़े शोज़ होस्ट किए मुंबई में, वो सब किया, फिल्में की. और उसके बाद अपना खुद का काम शुरू किया विद द कंटेंट क्रिएशन जर्नी. तो सारी चीज़ों में यही एक चीज़ होती थी कि कोई बात नहीं, वील लेट पीपल लाफ एट अस एंड वील डू इट. ये जो एटीट्यूड होता है, यू नो, ओवरकमिंग दैट फियर, और जैसे आपने कहा लेट पीपल लाफ एट अस, यू नो, वेरी हार्ड फॉर समबडी टू एक्सेप्ट. हियर इन हर केस her mother strengthened, you know, that. How does one actually develop that attitude? समवेयर आई थिंक बचपन से वो कंडीशनिंग होने लगती है कि अगर लोग आपको अच्छा कह रहे हैं तो वो आप अच्छे हैं, और अगर लोग कह रहे हैं कि नहीं अच्छा है तो वो नहीं अच्छा है, क्योंकि जो सब कह रहे हैं वही सही होता है. और पहले, अभी तो नहीं होता होगा, लेकिन पहले जब बच्चा बड़ा हो रहा था, कोई गेस्ट आते थे, कोई रिश्तेदार आते थे, तो कहते थे गाना गा के दिखाओ, अपनी पेंटिंग दिखाओ सबको, विद अ वेरी प्योर इंटेंशन कि बच्चे के अंदर जो टैलेंट है वो सबको दिखता है. और जब सब देखते थे तो कहते थे बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बेटा है, बहुत अच्छी बेटी है. व्हाट हैपेंड वाज, हम उनको अपनी डूइंग दिखा रहे थे कि हमने क्या किया है, लेकिन वो हमें अप्रिशिएट कर रहे थे और उन्होंने कहा बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छी लड़की है. लेकिन वो एक अंदर कोडिंग हो गई कि जब लोग अप्रिशिएट करते हैं, विच मीन्स आई एम अ गुड पर्सन, बट एक्चुअली दे वर अप्रिशिएटिंग द डूइंग. वो हमारी पेंटिंग, गाना, पोइट्री, उसको अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन उनकी वोकैबुलरी ये नहीं थी कि आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी है. वो कहते थे आप बहुत अच्छे हो, आपका बच्चा बहुत अच्छा है, वो पेरेंट्स को कहते थे. तो वहां दो, वो डूइंग और बीइंग क्या हो गया, फिर मिक्स हो गया कि जब हम डूइंग अच्छी करते हैं, लोग हमें अच्छा कहते हैं, तो हम अच्छे हैं. जब हमने डूइंग अच्छी की और लोगों ने अच्छा कहा, और अगर हमने डूइंग अच्छी की और लोगों ने ऑपोजिट कहा, या हमारी डूइंग उतनी अच्छी नहीं थी और लोगों ने ऑपोजिट कहा, तो वो डूइंग सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं हो रही थी, वो बीइंग क्रिटिसाइज हो रहा था. तो इसीलिए हमारी सेल्फ वर्थ, हमारी सेल्फ एस्टीम लोगों के ओपिनियन पर डिपेंडेंट हो गई. और उस समय के दायरे में लोग कितने थे, पड़ोसी, रिश्तेदार, इतना हमारा दायरा था. तो वो हमारे नोन लोग थे, हमें जानते थे. अब हमारा दायरा ऑफ पब्लिक ओपिनियन हैज बिकम वेरी बिग. कोई स्ट्रेंजर भी हमारे ऊपर ओपिनियन दे सकता है जिसको हम जानते भी नहीं. ऑल दैट द पर्सन हैज टू कम इन सोशल मीडिया पर आपके बारे में एक ओपिनियन लिखना है. तो अब फिर हमारा सेल्फ वर्थ बहुत फ्रेजाइल हो जाता है, क्योंकि मैंने किया और इतने सब लोगों ने बोला कि ये अच्छा नहीं है, मतलब समथिंग और राइट विद मी. सबसे पहले अगेन वो बीइंग एंड डूइंग को सेपरेट करना है. हमारा डूइंग एक जर्नी है, हम उस जर्नी में बहुत अच्छा भी कर सकते हैं, कभी गलती भी कर सकते हैं. वी कैन गो थ्रू आवर अप्स एंड डाउन्स. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमने किया नॉट नेसेसरी दूसरे को वो अच्छा लगेगा. आज अगर मैं एक सब्जी बनाऊं, वो मुझे अच्छी लगती है, अगर मैं 10 लोगों को खिलाऊं, उसमें से हो सकता है 8 को वो अच्छी नहीं लगती है. तो सबसे पहले तो ये समझना है कि जो किसी एक को अच्छा लगता है, नॉट नेसेसरी वो सबको अच्छा लगेगा. तो सबसे अप्रूवल एक्सपेक्ट करना, दैट इज आवर वन बिग मिस्टेक ओवर एनीथिंग दैट वी डू, और इवन हु आई एम, एवरीबडी कैन नॉट अप्रिशिएट इट. लेकिन वो कंडीशनिंग कि जो सब अच्छा कहते हैं तो अच्छे, सो वी हैव टू ब्रेक दिस. लोगों की अप्रूवल नहीं, लोगों की ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी होती हैं, वो हमें एनर्जाइज करती हैं. हमेशा नहीं मिलेंगी, जरूरी नहीं है. तो सबसे बड़ी एनर्जाइजिंग वो है जो आप खुद अपने लिए क्रिएट करते हैं. तो अपनी मेहनत करते जाएं, अपना पुरुषार्थ करते जाएं, लोगों को दिखाते जाएं, लोगों से आइडियाज लेते जाएं, लोगों से फीडबैक लेते जाएं, लेकिन लोगों की क्रिटिसिज्म या अप्रिसिएशन
दोनों को अपने तक आने नहीं देना, क्योंकि दोनों ईगो ही बढ़ाती है। क्रिटिसिज्म भी डिप्लीट करती है और अप्रिसिएशन भी हमारी ईगो को बढ़ाती है। तो दोनों बीइंग के लिए अच्छी नहीं है। अप्रिसिएशन भी अच्छी नहीं है बीइंग के लिए, अगर बीइंग को हैंडल नहीं करना आता है वो। तो इन बोथ केसेस वी हैव टू रिमेंबर, जो आपके लिए बहुत अच्छा बोल रहा है वो उसका संस्कार है अच्छा बोलने का। इट्स लेस टू डू विद हु आई एम और व्हाट आई एम डूइंग, इट इज दैट सोल्स नेचर टू बी वेरी अप्रिशिएटिव। वो हर चीज के लिए अच्छा बोलते हैं, और अगर आपके लिए कोई निंदा कर रहा है तो वो भी उनका संस्कार है। आप फीडबैक ले सकते हैं, क्रिटिसिज्म नहीं। फीडबैक ले लीजिए, आई कैन गिव यू अ फीडबैक बट आई कैन गिव इट समटाइम्स विद लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म अटैच्ड टू इट। तो फिर वो फीडबैक दर्द इतना करती है कि हम फीडबैक को भी नहीं लेते, क्योंकि क्रिटिसिज्म ने हमें हर्ट कर दिया। तो जब कोई फीडबैक दे विद क्रिटिसिज्म, फीडबैक उसमें से उठा लेना है, वो मेरे लिए था, क्रिटिसिज्म उनका संस्कार था। और अगर कोई अप्रिसिएशन के साथ फीडबैक ले रहा है, उसमें से भी फीडबैक मेरे लिए था, अप्रिसिएशन उनका संस्कार है। तो डूइंग पर वर्क कर सकते हैं, बीइंग को एनर्जाइज करना हमारा अपना काम है। तो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम लोगों के ओपिनियन पर डिपेंडेंट अगर होगी तो वो हमेशा फ्लक्चुएट करती रहेगी, हर एक का ओपिनियन अलग होगा। सो चूज द नंबर ऑफ पीपल हु रियली मैटर टू यू, मतलब जो आपके दायरे में है, जो आपको जानते हैं, आपकी डूइंग को नहीं, आपको जानते हैं, विच इज क्लोज फैमिली, क्लोज फ्रेंड्स। उनसे फीडबैक ले, उनसे ब्लेसिंग्स ले, सर्कल क्लोज इज देयर। बाकी सबके लिए ब्लेसिंग्स बहुत सारी। I think being mindful about these small nuances also is so important, because हमको सब आता है एक साथ, and we don't know what is hitting us, and your mind gets cluttered, and सबके साथ situations ऐसी होती रहती हैं। But छवि, आपके life में, when you heard that word cancer, what shook, what changed? जैसे आपने अभी कहा ना कि ये जब ओपिनियंस आते हैं, आप समझ नहीं पाते हो इन द मोमेंट कि वो फीडबैक है कि क्रिटिसिज्म है कि अप्रिसिएशन है। वो सिमिलरली व्हेन आई हर्ड द वर्ड कैंसर, टुक अ लिटिल टाइम टू अंडरस्टैंड कि ये कैंसर और छवि साथ में बोला जा रहा है। क्योंकि कैंसर तो कुछ ऐसा था जो दूसरों को होता है, हमें तो नहीं होता है, तो हमें तो नहीं हो सकता। फर्स्ट रिएक्शन वाज कि कुछ गलती हुई होगी, बॉलीवुड बैकग्राउंड है तो कुछ झोल हुआ होगा, रिपोर्ट्स अदला बदली हो गई होंगी, अभी डॉक्टर का कॉल आएगा और बोलेंगे सॉरी दिस वाज अ मिस्टेक। काफ़ी समय तो मैं यही, और मैनिफेस्टेशन हम इतना सुन लेते हैं कि हमें लगता है कि शायद यही मैनिफेस्टेशन है, हम बार बार ये चीज़ रिपीट करेंगे तो वो सच हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। तो सेकेंड रिएक्शन वॉज कि नहीं, आई एम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, मैं इसको खुद ट्रीट कर लूँगी, मुझे किसी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं खाना खा के अच्छा उसको ठीक कर लूँगी। लेकिन खाने में कोई ऐसी प्रॉब्लम थी ही नहीं, तो हुआ क्यों कैंसर वही नहीं पता था। व्हाट इज़ द रीज़न? इफ़ यू डोंट नो द कॉज, हाउ विल यू रेक्टिफाई इट? फिर धीरे धीरे ये सेंस आया कि नहीं, ये चीज़ है, दिस इज़ अ फैक्ट, एंड नाउ द बेस्ट वे टू गो अबाउट इज कि हमें इसके साथ डील करना है, ये जाएगा नहीं अपने आप। एंड आई थिंक, आई डोंट नो, ये रेट्रोस्पेक्ट में लगता है कि हाँ शायद स्ट्रेंथ थी, लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि ओ आई हैव टू बी स्ट्रांग। उस टाइम तो ये था कि चॉइस ही नहीं है, ये है, हमें करना है, तो इसमें तो चॉइस ही नहीं है, जान तो बचानी है। सो आई काइंड ऑफ जस्ट सरेंडर्ड माई सेल्फ टू माई डॉक्टर्स कि अच्छे डॉक्टर्स हमने ऑन द पैनल ले लिए हैं और ये डिसाइड करेंगे क्या करना है। मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है, आप हो ना एक्सपर्ट, आप बताओ क्या करना है। आप ये बोल रहे हो, ठीक है, दिस इज द बेस्ट कोर्स फॉर मी। एंड आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई लुक बैक एंड आई थिंक ऑफ इज कि कभी मैंने दिमाग में वो थॉट मैं नहीं लेकर आई कि अगर ये गलत हो गया तो क्या होगा, जान चली गई तो क्या होगा। सो आई थिंक द वे आई लुक एट फेथ इसकी, जैसे अभी मैं यहाँ आ रही थी शूट के लिए, तो थॉट नहीं आया ना दिमाग में कि नहीं पहुंची तो क्या होगा, वो तो थॉट ही नहीं आया, बिकॉज दैट इज द फेथ, दैट इज द फेथ दैट आई हैव कि गाड़ी में बैठी हूँ तो गाड़ी तो पहुंचेगी ना वहां तक, वो तो थॉट ही नहीं है। तो वैसा मेरे दिमाग में कभी थॉट आया ही नहीं कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा। एंड probably a lot of people looked at it as strength. I just looked at it as one day at a time. तो ये भी जब अभी आप बोल रही थी कि ये वैलिडेशन जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, हमें आदत हो जाती है बीइंग, अपने बीइंग को वैलिडेट करने की, ये इतना एडिक्टिव होता है कि आफ्टर अ पॉइंट जब इतने सारे लोग दे रीच्ड आउट एंड दे सेड वाओ
आपने तो कमाल कर दिया, तो उसकी भी आदत पड़ गई कि अरे कुछ अच्छा किया मैंने, ओ मैंने अपनी जान बचा ली, आई फॉट फॉर माई सेल्फ, इट वॉज अ बिग थिंग, बट इट वॉज नॉट. एवरीबडी इज फाइटिंग फॉर देम इन सम और द अदर वे ऑन अ डेली बेसिस. वो एक अलग स्ट्रगल था एक्चुअली. कैंसर क्योर होना was one struggle, but this new struggle which cropped up because of that was an entirely different one. But did you go through some emotions? Because, sometimes you get, it could be anger, it could be, like what you said, couldn't happen to me, blame, so many things happen. Did you go through some emotions and how did you deal with it? So I think the strongest emotion that I felt from time to time was frustration. There was no anger, there was no self-victimization, but वो frustration बहुत था क्योंकि जैसे मैंने कहा कि शुरुआत से आदत है हार्ड वर्क करने की और हमेशा अपने पैरों पर खड़े होना है, इंडिपेंडेंस, सेल्फ इंडिपेंडेंस, लेकिन सडनली जब फिजिकली आपकी बॉडी आपको सपोर्ट नहीं करती है ना, तो दैट वाज sometimes very frustrating, and I would say it was a non-linear journey. कभी ठीक होता था, कभी नहीं होता था. आज मैंने काम भी बहुत जल्दी रिज्यूम कर दिया कैंसर के बाद, तो आज ठीक है, कर सकती हूँ, लेकिन आज जो रेडियोथेरेपी हुई है उसमें थोड़ी स्वेलिंग आ गई, पेन आ गया, आज नहीं हो पा रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन हो रही है. प्लस बिकॉज आई एम अ स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन, आई वुड ऑलवेज थिंक कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो कर लूंगी, लेकिन जब मैं वो नहीं कर पाती थी तो मुझे फ्रस्ट्रेशन होती थी. तो वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो आती जाती रहती है. Wouldn't say anger, but yeah, that frustration is a part. So, we always use this word mind over matter. Like very good example of कभी body नहीं support कर रही है, situation नहीं support कर रहा है, पर हमारा mind, strong रहता है तो we can go through. कभी कभार वो भी नहीं, like in certain situations it doesn't. How would you explain mind over matter? First to understand, mind is separate from the matter. मतलब आत्मा अलग है, शरीर अलग है. हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो ह्यूमन बीइंग मतलब दो चीजें हैं. ह्यूमन बॉडी जो ह्यूमस मट्टी से बना है, और बीइंग एनर्जी है. तो अगर हम रेगुलरली पहले इसको प्रैक्टिस करते हैं ना, मतलब ये हमारी कॉन्शियसनेस में होता है कि ये मेरा शरीर है. लाइक फॉर अस एवरी डे इट्स डीप इनग्रेन्ड, ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर है. दिस इज नॉट आई, दिस इज माइन. सो इट्स एज माइन एज दिस साड़ी आई एम वेयरिंग. इट्स जस्ट एज माइन एज दैट कि ये मेरी साड़ी है, ये मेरा शरीर है. एब्सोल्युटली ये मैं नहीं हूँ. इतना डीप इनग्रेन्ड है क्योंकि रोज उस पर वर्क कर रहे हैं, रोज उस पर मेडिटेट कर रहे हैं. तो फिर जब बीमारी होती है तो वो हमें पता होता है मुझे नहीं हुई है, बीमारी मुझे तो हुई नहीं है, सर्जरी मेरी नहीं हो रही है, सर्जरी मेरे शरीर की हो रही है. इट्स लाइक यहाँ फट गया कुछ, तो आपको कितना बुरा लगने वाला है ये फटने से. फट गया, सी लेंगे इसको. और अगर इतना फट गया कि नहीं सिया जा सकता तो भी दुख नहीं होता, फिर नया कॉस्ट्यूम लेना है. सो दैट प्रैक्टिस ऑफ सो मेनी इयर्स एक्चुअली मेक्स इट वेरी इजी टू हैंडल अ डिजीज, बिकॉज यू आर सो डिटैच्ड फ्रॉम द डिजीज, बिकॉज यू आर डिटैच्ड फ्रॉम द बॉडी. डिटैच्ड मतलब आपने उसको अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाया हुआ. तो फिर वो जो आता है, जैसे पता है ना कि हेल्पलेसनेस इसलिए आती है क्योंकि फिर भी हम एक अटैच्ड हैं एक चीज से. और वो अटैचमेंट ये है, जैसे बहुत प्यार से, इट्स वेरी ब्यूटीफुल दैट शी इज एबल टू सी हर थॉट्स एंड कनेक्टेड, कि आई एम अ पावरफुल पर्सन सो आई कैन डू एवरीथिंग दैट आई डिसाइड टू डू, विच इज ट्रू. आई एम पावरफुल, राइट नाउ माई बॉडी इज वीक. वो हम दोनों को सेपरेट नहीं करते हैं ना. फ्रस्ट्रेशन उसकी वजह से आती है. हम उतने ही पावरफुल हैं, इन स्पाइट ऑफ बॉडी को कुछ भी हुआ है, हम उतने ही पावरफुल हैं. लेकिन क्योंकि हम दोनों को जोड़ के जीते हैं ना, तो जब बॉडी कुछ नहीं कर पाती है तो हमें लगता है हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन है. आई फील आई एम नॉट बीइंग एबल टू डू इट. आई एम परफेक्टली फाइन, लेकिन मेरी बॉडी की इस टाइम वो क्षमता नहीं है. तो इसीलिए वो सेपरेशन जब रखेंगे ना आई एंड माइंड का, फिर फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी. आई एम बिल्कुल फाइन, बट आज मेरा शरीर ये काम नहीं कर सकेगा. बैठ के कुछ करवाना है मुझसे, तो आई एम फाइन. सो दैट आई एंड माइंड की वोकैबुलरी मेक्स इट ईजी टू हैंडल इट. तो इलाज चलेगा, ऊपर नीचे बातें आएंगी, साइड इफेक्ट्स भी आएंगे, लेकिन सब कुछ होते हुए बिकॉज आपने वो डिटैचमेंट लाई हुई है, तब आई रिमेन्स वेरी पावरफुल.
बिकॉज आई एम परफेक्ट, आई नो दैट. लोग आके क्या बोलेंगे, आपको कैंसर हो गया, तो हम बोलते नहीं मुझे नहीं हुआ, मेरे शरीर को हुआ, बिकॉज इट्स टू डिफरेंट वर्ड्स. आप बीमार हो, नहीं मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा शरीर ठीक नहीं है. एवरी लाइन वी चेंज. लोगों को इसमें क्या फर्क है सर, इसमें क्या फर्क है, मतलब मेरी साड़ी फट गई तो आप बोल रहे हो मैं फट गई, नहीं मेरी साड़ी फट गई, इतना फर्क है. सो वो फर्क बहुत डीप इनग्रेन्ड है. और जब वो होता है ना, तो माइंड रिमेन स्टेबल, पावरफुल, एंड दैट वाइब्रेशन हेल्प्स टू हील द बॉडी. क्योंकि यहाँ की हर थॉट यहाँ जा रही है, ये तो हमें पता ही है. जैसे हम लोगों की वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हमारी बॉडी हमारी वाइब्रेशन को फील करती है. मेरे सबसे नजदीक कौन है, मेरा शरीर. तो मेरा शरीर मेरी हर इमोशन को फील करता है, मेरा शरीर मेरी हर थॉट को कैच करता है. सो बिकॉज ऑफ दिस डिटैचमेंट हमें पता है आई एम परफेक्ट, तो बट परफेक्ट एनर्जी जानी शुरू हो जाती है बॉडी को, बिकॉज आई एम क्लियर. मेरे को सपने में भी नहीं आएगा कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि वो मेरी थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी है. तो आई एम परफेक्ट, वो एनर्जी बॉडी को जाती रहती है. दैट हेल्प्स इन द हीलिंग ऑफ द बॉडी, बिकॉज माई सबकॉन्शियस में भी, सपने में भी ये अफर्मेशन है, आई एम परफेक्ट. तो वो अपने आई एम बीमार ये एक बार भी नहीं आता. सो ऑटोमेटिकली बॉडी को परफेक्शन की एनर्जी, एवरीथिंग इज फाइन बिकॉज आई एम फाइन. तो वो एनर्जी जब मिलती रहती है तो बॉडी की हीलिंग मेडिकल प्रेडिक्शन से ज्यादा बेटर होती है. That is fine. That is always happens. And you will feel a lot of pain in the body, but you will not feel the suffering. दर्द बहुत होगा, इतना दर्द होगा कि आपको यहाँ से यहाँ उठाने के लिए किसी की हेल्प हो सकती है, इतनी डिपेंडेंसी हो जाएगी, लेकिन आपको वो सफरिंग नहीं होगी, बिकॉज अगेन यू आर रिमेम्बरिंग इट्स ओनली माई कॉस्ट्यूम. सो दैट कॉन्शियसनेस हेल्प्स टू हील द बॉडी फास्टर. I think this is such an important understanding, but ये जो हमारी vocabulary होती है ना, it's अलग ही है, because if you start talking like that, everybody around will say, कुछ बदल गया है, कुछ shift हुआ है. But I think many times कुछ चीज़ें होती हैं हमारे life में जिसके कारण हम ये shift कर भी पाते हैं, because नहीं तो and therefore, but फिर भी ये तो एक shift हो गई. But at every stage you will get tested. Now for you, for example, आप actress हो, पहला thought जाएगा मेरे looks को क्या affect, because कैंसर से जुड़ा बहुत सी चीज़ें होती हैं ऐसी, वो भी सब आपके ख्यालें आई होंगी, एंड ऑल ऑफ दैट टेक्स दैट माइंड ओवर मैटर लिटिल वीकर, बिकॉज यू वांट अ परफेक्ट फिजिकल, तो वो सब ख्यालें आई आपको. एंड हाउ डिड यू डील विद दैट? एनी एनेक्डोट्स फ्रॉम दैट? एक्चुअली ये जो स्ट्रगल जिसकी आप अभी बात कर रहे हैं, ये इमीडिएट थॉट्स नहीं थे. ये रियलाइजेशन मुझे करीब 1 साल के बाद हुई. जब बिकॉज उस टाइम पे क्या था कि जान बचानी इज इम्पॉर्टेंट, वो पहले करना है और अपना जो काम है उसको हैंडल करना है. लेकिन ये जब 1 साल हो गया ना, ट्रीटमेंट खत्म हो गया, अभी 8-9 महीने ट्रीटमेंट खत्म हुए हो गए, 1 साल सर्जरी को हो गया, तो एक एंटिसिपेशन थी उस वक्त कि दिस विल पास, दिस विल पास, दिस विल पास, दिस विल पास. मगर वो 1 साल के बाद जब ये रियलाइजेशन हुई कि no, I will always be a cancer survivor. That will never pass. That will always be a part of my life now. And the physical restrictions that I have, I wouldn't say so much, appearance doesn't bother me as much as the physical restrictions do. Appearance, मतलब मुझे confidently ऐसा लगता है कि again, ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं handle कर सकती हूँ. लेकिन वो जो रिस्ट्रिक्शन है ना, वो फिजिकल रिस्ट्रिक्शन की वजह से मैं काफ़ी चीज़ें हैंडल नहीं कर सकती हूँ. तो वहाँ पे मुझे थोड़ा स्ट्रगल महसूस होता है. और टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनली मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों ने मेरे साथ एसोशिएट करना बंद कर दिया. और ये चीज़ मैंने रेट्रोस्पेक्ट में नोटिस की कि अरे 6 महीने से मुझे किसी ने काम नहीं दिया है, क्या हुआ, अरे 8 महीने हो गए. तब मैंने रियलाइज़ किया कि लोगों को ये लग रहा है कि पता नहीं ये काम कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, वीक होगी, पर्सनल स्ट्रगल है, मे बी दैट दोज काइंड ऑफ थॉट्स मस्ट हैव कम टू पीपल्स माइंड्स. लेकिन उससे एक जो नई चीज़ हुई वो ये कि कुछ और तरह के लोगों ने मेरे साथ एसोशिएट करना शुरू किया, जैसे कि NGOs, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, हेल्थ प्रैक्टिशनर्स, मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स. एंड आई थिंक वो जो एक ट्रांजिशन था ना, बहुत ही सुपरफ्लुअस काम से थोड़ा सा इन डेप्थ काम की तरफ जाना, वो एक्चुअली वो कुछ ऐसा था जो मैंने अप्रिशिएट करना शुरू किया. क्योंकि मुझे लगा कि
शायद ये कैंसर मेरी लाइफ में आया है मुझे कुछ सिखाने के लिए, और वो क्या है जो मुझे सीखना है वो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ. हो सकता है कि मैं सारी जिंदगी ऐसे ही सरफेस पे गुजार देती अगर ये नहीं आता. ये आया तो कुछ हिला, वो कुछ हिला तो मुझे दिखा कि अरे यहाँ पे भी काम की जरूरत है, यहाँ पे भी काम की जरूरत है, ये भी मैं कर सकती हूँ. शायद मैं किसी और की लाइफ में भी कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हूँ, शायद मैं अपनी लाइफ में भी ये चेंज कर सकती हूँ. और उसके बाद मैंने एक नए तरह का काम शुरू किया, एंड आई थिंक दिस वर्क इज सो मच मोर फुलफिलिंग. एंड आई थिंक वो जो एक स्टैग्नेशन लाइफ में आई थी वो हट गई. और जो भी मुझे आज रेट्रोस्पेक्ट में जो दिखता है वो यही दिखता है कि जो भी हुआ पॉजिटिव ही हुआ. कुछ लोग थे जिन्हें मैं पहचान नहीं पा रही थी, उन्हें मैंने पहचान लिया, और कुछ अपनी कैपेबिलिटीज थी जिनको मैंने ऐसे ढक के रखा हुआ था, मुझे ही नहीं पता था कि मैं ये भी कर सकती हूँ, मैंने उन्हें भी अनलीश किया. और आई थिंक आज भी मुझे मतलब वैसा नहीं हुआ है कि हाँ आई रीच समवेयर. मुझे लगता है ये जर्नी एक स्टार्ट हो गई है और अब देखते हैं कहाँ पहुंचेंगे. सो ऑल इन ऑल माई टेक अवे हैज बिन वेरी वेरी पॉजिटिव थ्रू इट. एंड अगेन वो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वो एक स्ट्रगल है, जो एक कॉन्स्टेंट नॉन लीनियर स्ट्रगल है. वो बॉडी को माइंड से डिटैच करना है, पता है, हो नहीं पाता है वो भी पता है, लेकिन कोशिश करनी है, तो वो भी एक चीज है जो चल रही है. You know, when you use the word fulfilling, आपका चेहरा ना पूरा खिल गया. देखा आपने कितना it you was know, so beautiful. so you were so passionate and excited Yes. when you said fulfilling. So tell us a little more about what you're doing today. You know, what is that shift, right? And how has it changed some of the things you're doing today? That's a beautiful question. The biggest thing which I started is my podcast. और the reason उसको शुरू करने का ये था कि मुझे जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मैं अपने आप को इग्नोरेंट बोलती हूँ. क्या चीजें हैं वो भी नहीं पता है, इतनी लेवल तक इग्नोरेंस है कि क्या क्या चीजें लाइफ में ऐसी हैं, सब्जेक्ट जिनके बारे में कुछ पता नहीं है. तो आइडिया वॉज कि मुझे ऐसे लोगों से मिलना है जिन्होंने जिंदगी के 20 साल लगा दिए हैं इस एक सब्जेक्ट को स्टडी करने में, और उनसे समझना है कि ये क्या होता है. अगेन जैसे सफरिंग जैसा एक सब्जेक्ट है कि माइंड ओवर मैटर, माइंड बॉडी कनेक्शन, आसपास के लोगों की बॉडीज के साथ कनेक्शन, उनके माइंड्स के साथ कनेक्शन, ये चीजें इतनी ज्यादा डीप हैं कि इन्हें समझने में बहुत टाइम लगेगा. तो वो जर्नी जारी है कि मैं लोगों से मिलूं, उनसे सवाल पूछूं इन चीजों के बारे में. और व्हाई इज इट फुलफिलिंग इज बिकॉज एज अ टीवी एक्टर आई हैव अ लॉट ऑफ फैंस. फॉर माई ओन कॉन्टेंट क्रिएशन बिजनेस SIT जब हमने शुरू किया तो वो फैन फॉलोइंग और बहुत मिलियंस में चली गई. लेकिन आज की डेट में जब मुझसे कोई मिलता है और जो मुझसे बात करता है कि आपका ये देखा या आपका ये कंटेंट देखा, सबसे पहली चीज़ जो वो बोलते हैं, और पॉडकास्ट शुरू करे हुए मुझे 1 साल हुआ है, सबसे पहली चीज़ जो वो बोलते हैं वो ये कि आपका पॉडकास्ट मुझे तब दिख जाता है जब मुझे ज़रूरत होती है. एंड आई फील दैट इज़ द बिगेस्ट फीडबैक एंड दैट इज़ द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ अप्रिसिएशन that I can get. And I think कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी को मैं इम्पैक्ट कर रही हूँ, वो चीज़ मेरे लिए बहुत मायने रखती है. तो वो एक चीज़ है. और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से लोगों के साथ मैं पर्सनली कांटेक्ट भी करती हूँ. आई क्रिएटेड अ वेबसाइट जहाँ पे लोग मुझे अनोनिमसली मैसेज करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं. तो एक लेवल पे समझ आती है कि आई एम नॉट दी ओनली वन सफरिंग, आई एम नॉट दी ओनली वन फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स. ये प्रॉब्लम्स भी हैं लोगों को. एक कैंसर जैसी प्रॉब्लम सबको दिख गई, लेकिन और बहुत सी चीज़ें हैं जो दिमाग में हैं, जो ना कोई किसी से कह पाता है, ना कोई सोल्यूशन होता है उन प्रॉब्लम्स का. वो भी प्रॉब्लम्स होती हैं. तो एक ऐसा रियलाइजेशन होती है दैट आई एम सच अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस होल कॉस्मोस, एंड दैट काइंड ऑफ कीप्स मी वेरी ग्राउंडेड एंड कीप्स मी वेरी हम्बल. और वो रियलाइजेशन ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, इंस्टेड ऑफ फीलिंग कि अरे मेरे तो इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, पीपल लव मी, बिकॉज दैट इज़ वेरी एडिक्टिव. फिर आपको लगता है कि आप पता नहीं क्या बन गए हो. You know, जो आप कहते हैं ना, वो we are just a speck in the cosmos of the universe. Everybody realizes that at some point. पर वो realization को मिटने में कुछ ही seconds लग जाते हैं, and we are back immersed in the world. You know, therefore, as you were saying, it's a daily reminder, multiple times a day, so that you can be the best version of what you're doing on a daily basis, right? You know, she was talking of many people reaching out, you know, talking about their sufferings and their. आपको तो आपके पास भी तो काफी, you know, all types.
how does someone, of course, you will help guide them on the spiritual side and to be able to make deep transformative changes, but sometimes people just want to be heard, or what can largely people do when someone tells you something or confides or says, what should be the first reaction? Any advice on that? Because that can help a lot of your fans and a lot of the viewers that we have. When someone is sharing something with you, जनरली अगर कोई प्रॉब्लम या कोई दर्द है, कोई दुख है, उस तरह से वो शेयर कर रहे हैं, हमें आंसर नहीं देना है इमिजिएटली, उनको एडवाइस नहीं चाहिए अभी, पहले उनको वो हीलिंग चाहिए. वो हीलिंग सोल्यूशन से नहीं होती ज़रूरी, और ज़रूरी नहीं सोल्यूशन इमिजिएटली इम्प्लीमेंट हो रहा है या कुछ हो रहा है. उनको सिर्फ अच्छी वाइब्रेशन चाहिए अभी. आपको सिर्फ उनके पास बैठना है, या इवन अगर लिखा है तो हम तो उनके लिए मेडिटेट करते हैं, इवन इफ समबडी सेंट इट ऑन ईमेल. आप उनके पास बैठें, उनको बोलते रहने दें, आप उसकी इमोशन को ना ऑब्जॉर्व कर लें. समटाइम्स पीपल फील आई कैन फील देयर पेन. ऐसे, बट यू आर नॉट सपोज टू फील देयर पेन, यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड देयर पेन. दोनों में बहुत फर्क होता है. अगर हम दूसरे का पेन फील करने लग जाएंगे तो फिर तो हम भी पेन फील कर रहे हैं, तो मतलब फिर आई एम ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग पेन, तो फिर मेरे से तो उनको पेन ही मिल जाएगा फिर. सो सिंपैथी इज अ डिप्लीटर. सिंपैथी में आपको भी दर्द होने लग जाता है दूसरे का दर्द देखकर. एम्पैथी मीन्स कि मुझे आपका दर्द समझ में आ रहा है, बट मेरी एनर्जी इस टाइम बिल्कुल सही है क्योंकि मेरे पास अभी कोई चैलेंज नहीं है, या आई एम फाइन है. तो एम्पैथी इज इम्पोर्टेंट. लोगों ने सिंपैथी को एक क्वालिटी बना दिया कि सिंपैथी इज नॉट अ क्वालिटी, बिकॉज दैट क्वालिटी इज डिप्लीटिंग यू. तो फिर हम उसको पावर नहीं कह सकते हैं. कई लोग सड़क पर जाते हैं, गाड़ी में होते हैं, किसी को देख लेते हैं, जैसे कोई मांगने वाले आते हैं, उनकी गोदी में एक बच्चा होता है, बच्चा थोड़ा सा ऐसे कहते हैं मुझे ही रोना आ गया देखकर. अगर आपको हरेक का दर्द देखकर आपने दर्द क्रिएट करना शुरू करना है तो फिर आपसे सबको दर्द ही मिलेगा. तो पहले तो वो अपनी वर्क करनी है कि अब्जॉर्ब नहीं करना है दूसरे का पेन. सो कई बार जब हम किसी का सुन रहे हैं, हम साथ साथ उनका पेन अब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि वो तो पेन में बात कर रहे हैं. परिवार में तो ज्यादा ही होता है, बहुत ज्यादा होता है. तो जब आप पेन अब्जॉर्ब कर लेंगे, और अगर परिवार है तो सामने वाला न भी पेन में हो, आप चिंता की वजह से उनके लिए पेन में है. तो सपोज फैमिली में एक मेंबर के पास ये कैंसर आया, या आजकल फैमिली में एक मेंबर के पास एक डिप्रेशन आया, कोई भी इशू, या फैमिली में एक जना ब्रेक डाउन, या एक रिश्ता टूट रहा, कुछ भी है, हाउ शुड द रेस्ट ऑफ द फैमिली बी? तो पूरी फैमिली को पावर हाउस होना होता है उस टाइम पर, ताकि उनकी पावर घर के एनवायरनमेंट को एनर्जाइज करेगी. उनकी पावर और घर का एनवायरनमेंट, दैट वन पर्सन जो गो थ्रू कर रहे हैं किसी चीज से, उसको एनर्जाइज करेंगे, और फिर उनके पास स्ट्रेंथ होगी अपने चैलेंज को क्रॉस करने के लिए. तो हमें ध्यान रखना है, अगर हमारे पास कोई एक है, चाहे वो शेयर करने आए हैं या वो हमारी फैमिली में है या फ्रेंड्स में है, सो आई ऑलवेज यूज बोथ द हैंड्स एंड से दे आर ऑन द लेफ्ट हैंड. लेट्स से उनकी एनर्जी अभी डाउन है, आपकी एनर्जी इधर होनी चाहिए, लेकिन उनको देखकर अगर आपकी एनर्जी भी यहाँ जाने वाली है, कभी कभी तो उनसे भी ज्यादा दर्द में चले जाते. सो सपोज शी इज गोइंग थ्रू ट्रीटमेंट, she is going through her own thing, but parents can get even more worried for her and they can go here. And यहाँ जब हम जाते हैं, हमें लगता है ये प्यार है, ये प्यार नहीं है, ये दर्द है, और ये दर्द इनको मिलता है और फिर इनका दर्द बढ़ जाता है. So in the name of attachment, we add pain to people's pain. But love means कि you're detached from their emotional state. वो दर्द में हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपने मन को परफेक्ट रखकर उनके मन को पावरफुल बनाना है. तो वो हम, इफ आई टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर, तो वो तो अटैचमेंट भी नहीं है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि वी आर नॉट अब्जॉर्बिंग पेन, क्योंकि समटाइम्स वी मीट हीलर्स, इवन मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स, क्योंकि वो दिन में कितने बार सब लोगों की प्रॉब्लम सुनते सुनते 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल 30 साल, अगर खुद को नहीं एनर्जाइज करते हैं तो फिर धीरे धीरे वो एनर्जी हमारे ऊपर, एनर्जी मतलब दूसरे की वाइब्रेशंस जब, तो एनीवन हु इज गोइंग टू लिसन टू पीपल्स प्रॉब्लम्स हैव टू एनर्जाइज देमसेल्व्स ऑन अ डेली बेसिस. बहुत जरूरी. एंड स्पेशली समबडी लाइक यू हु वांट्स टू नाउ मेक दिस योर पर्पस एंड डू मोर, राइट? सो ये जो सिंपैथी एंड एम्पैथी जो बोलते हैं ना, इट्स अ वेरी
there is a fine line, and navigating that is very important, as you rightly pointed out. ये तो scientifically बोल रहे हैं कि technically आपकी energy high रहेगी तो you will obviously be able to do more and empower others. Yeah. And if you get emotionally, but it is so hard, as a family and this, and I'm sure you've been through all of those journeys. Were there some, I don't know, like you said, experts, pillars, doctors, others who gave you that strength at some point in time, made you realize, especially in that pehle 1-2 saal jo aap bol rahe the, who made that shift happen, and what was that angle for you? I don't think there was anyone. I don't think that there was anyone because मुझे लगता है कि जब मुझे ही नहीं समझ में आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है, can't expect anybody else around me to understand what is going on with me. I think, like I said, साल भर के बाद जब कुछ चीज़ें realize होनी start हुई, तब मुझे ये भी realize होना start हुआ कि something has changed in my mind, something has changed in the way I think, something has changed in the way I feel, and it was very difficult for people around me to understand me what I was going through, because बाहर के लोगों के लिए, and I'm talking about everyone who's not part of my body, everyone thought कि सर्जरी के 7 दिन के बाद ये घर आ गई है तो she's cancer free. अब क्या प्रॉब्लम है? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. But the actual journey actually began from that point, because treatment start हुआ, रिहैब स्टार्ट हुआ, उसके बाद मैंने अपने लिमिटेशंस रियलाइज करने शुरू किए, और ये रियलाइज करना शुरू किया कि अब मैं उस तरह से काम भी नहीं करना चाहती जिस तरह से मैं पहले करती थी. दैट वाज अ बिग शिफ्ट व्हिच हैपेंड इन माय लाइफ, कि एवरीथिंग इज नॉट वर्क, देयर हैज टू बी सम पर्सनल टाइम. मैंने जिंदगी में कभी पर्सनल टाइम नहीं लिया, उसके बाद मैंने लेना स्टार्ट किया. तो वो एक शिफ्ट था फॉर एवरीबडी अराउंड मी. और 1 साल के बाद तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि अब क्या, अब तो 1 साल हो गया, अब तो जिम भी जा रही है, अब तो वेट्स भी उठा रही है, रनिंग कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिजिकली शी इज एब्सोल्युटली फाइन, शी इज वर्किंग, एवरीथिंग. बट दैट स्ट्रगल एक्चुअली ट्रूली आई अंडरस्टूड आफ्टर अ ईयर कि कुछ प्रॉब्लम है. व्हाई एम आई क्राइंग फॉर नो रीजन? व्हाई एम आई रिएक्टिंग लाइक दिस इन दिस सिचुएशन? व्हाई एम आई ऑन एज ऑल द टाइम? What am I scared of? What is this fear? Why am I anxious all the time? That is when I started going to therapy and understanding, doing some kind of self-work. And that is when I started associating with some healers who now they guide me. जब भी कभी मतलब इस तरह का मुझे लगता है कि बहुत mind is going down in the dungeons, तो मैं उनसे फिर connect करती हूँ. लेकिन so to speak, there was nobody around me who could help me. The only person or people who I can say were some kind of strength to me were my kids. Chota wala was hardly 2 years at that time. The elder one was 9. Now they are 7 and 13. उनसे मुझे ये चीज़ सीखने को मिलती थी कि what is patience and what is unconditional love. Because they saw me cry and they would still just come and hug me without any questions asked, without any conversation, without any expectation. And my little one, मैं उसको गोद में नहीं उठा पाई काफ़ी टाइम तक, and he was fine with it. He would just come and ask me when he would hug me कि मम्मा right side कौन सी है? Because right side is the surgery side. Right side कौन सी है? Then I would say ये. Then he would come and hug me this side. And it just felt like कोई उसके दिल में ये नहीं था कि मम्मा she's not picking me up, or she's not pacifying me when I need her, or she's not coming out when I want her to feed me, or she's not playing with me. Nothing like that. And I understood कि ये होता है unconditional love. उसको मुझसे expectation ही नहीं है. मुझे उससे ज़्यादा expectation है छोटे से, लेकिन उसको मुझसे कोई expectation ही नहीं है. And my daughter, she was very happy when I told her कि हम जाएंगे, हम walk करेंगे, you can hold my hand, walk with me and help me rehab. And she was happy with that. She was very happy with what I was expecting her to do, rather than expecting me to do anything for her. So that was a very big, they were very big pillars of strength for me. Detached from the disease and the information about the disease. 2 साल के बच्चे को क्या पता है कि कैंसर क्या होता है? तो उसके अंदर फियर नहीं है, उसके अंदर वरी नहीं है,
उसके अंदर पेन नहीं है बिकॉज यू आर नॉट वेल, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है, यू नो. सो लैक ऑफ नॉलेज is keeping that soul एकदम powerful, happy. That soul becomes her energizer. That's all that we need. We need such people around us. उसके लिए तो वो automatic था because उसको information नहीं है what she's going through. The child can see the pain, but the child doesn't have information. So the child's mind is very clean, very powerful. That becomes energizing. That is how every caregiver needs to be. कोई भी बीमारी में हमारी फैमिली केयर गिवर है, बट हमने केयर गिविंग को बहुत फिजिकल रखा है बिकॉज फिजिकली सब लोग सब कुछ करते हैं, मतलब उनकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है इफ वी आर गोइंग थ्रू एंड देन सब कुछ, टाइम, मनी, फिजिकल रिसोर्सेज. बट केयर गिविंग सिर्फ फिजिकल नहीं होती है, केयर गिविंग इमोशनल भी बहुत होती है. एंड वो इमोशनल केयर गिविंग ये है कि आप अपने अपने मन का ध्यान रखो. आपको मेरे लिए ना डरना है, ना चिंता करनी है, ना आगे का सोचना है कि इसको क्या होगा, क्योंकि मैं पहले ही ऑलरेडी वो सोच रही हूँ. अगर आप सब भी वही सोचेंगे तो फिर वो मेरी सोच को और बढ़ाएगा एंड दैट इंक्रीजेस माय सफरिंग. तो फैमिली ऑलवेज नीड्स टू रिमेंबर केयर गिविंग फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोशनल उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. डॉक्टर बॉडी का ध्यान रखेंगे, फैमिली को, माइंड को पावरफुल रखना है, तब सामने वाला मिरेकल क्रिएट कर लेगा. सो जस्ट फैमिली टेकिंग केयर ऑफ देयर माइंड adds to the healing of the person going through the disease. It's very big. It's a very important point you raise because self-care of mind, like जो आप बोल रहे हैं कि is the starting point of any caregiving. You know, we were saying that when the word cancer hits an individual or a family, it hits everybody. Like आपके family में आपके बच्चे young थे, उनके innocence ने आपको strength दिया. Most families में जब ये होता है, कभी थोड़े elderly, तो आज तो AI का ज़माना है, आप बोले आप यू ट्रस्टेड द एक्सपर्ट्स, सबके पास ओपिनियंस होती हैं, सबके पास यू कैन लुक फॉर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन विच इज हाफ बेक दिस. एवरीबडी वांट्स टू डू द बेस्ट विदाउट स्ट्रेंथनिंग देमसेल्व्स. I also want to add that जब हमें पता चला था, जब रिपोर्ट आई थी बायोप्सी की, so I told my husband कि it's not good, have a seat, the report has come, it's not good. And his presence through the entire treatment, I think, was very very impactful also because वो उसकी आंखों में आंसू आए, they did not fall out, and he just told me we'll get through it. And that we'll get through it makes a lot of difference because it wasn't that I have to get through it, it's us together. And every time he would ask me what can I do, whatever I would tell him, तुम बस बच्चों का ध्यान रख लो, just take care of this at work. He made sure that problem never came to me. बच्चे बीमार हैं या उनको स्कूल भेजना है, whatever, it's not my concern. And he allowed me that time with myself. Or if I would just tell him, just leave me alone. I don't want interaction right now. I want to be with my thoughts. I want to go out. I want to check into a hotel and be alone today. He would just ask me, okay, which hotel? I'll book you. So, that support also helped a lot. And I want to say this out loud कि, like you said, caregivers को लगता है कि physically तो करना ही है, आप जो कर सकते हो वो तो करना ही है. डॉक्टर के तो आप लेकर जाओगे, हॉस्पिटल तो आप लेकर जाओगे, टेस्ट तो आप कराओगे ही, लेकिन उसके अलावा जो बॉडी फिजिकली रिकवर कर रही है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, और जो माइंड रिकवर कर रहा है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो. सो अलाउ द पर्सन दैट स्पेस एंड दैट लिबर्टी दैट आई हैड कि मुझे किसी चीज़ की और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी पड़ी, किचन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी पड़ी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी पड़ी. आई टोल्ड माई मॉम टू कम एंड स्टे विद मी एंड टेक केयर ऑफ द हाउस विद माई हस्बैंड, कर लो. वो चीज़ से बहुत फ़र्क, आई थिंक इट मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू माई रिकवरी. Our education teaches us knowledge, this is correct, this is wrong, this is the truth, this is how the thing works, science, everything. These aspects we never taught anywhere, you learn through experience. But I always believe, like exam ke liye aap prepare hote ho, all of this can have preparation because aaj nahi to kal, at some point in your life, you or someone in your family will be faced with situations, but we don't know how to be prepared for it. What as a country, as Bharat, which has been such a rich
culture and such a giver of knowledge, the true spiritual knowledge and all to the world. One, what can we do? But how can we prepare people? What is that preparation? I mean, आपको लोगों को सिचुएशन के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, आपको सबको सेल्फ एनर्जाइजिंग रोज करनी है. हम सेंटर पर हर रोज देखते हैं कि व्हेन पीपल कम टू लर्न मेडिटेशन, एवरीथिंग इज फाइन इन देयर लाइफ, देव जस्ट कम, क्योंकि किसी ने बताया तो वो आ गए. जर्नी शुरू हुई, कर रहे हैं, फिर लाइफ में कभी ना कभी कोई चैलेंज आ रहा है, बच्चे की लाइफ में चैलेंज आ रहा है. दे आर डिफरेंट पीपल नाउ इन दैट सेम चैलेंज. दे कंप्लीटली डिफरेंट बिकॉज उन्होंने खुद को एम्पावर कर दिया है. तो खुद को एम्पावर करने की वजह से जब वो सिचुएशंस आर बिग सिचुएशंस, टू द एक्सटेंट यू कैन लूज अ चाइल्ड, उस तरह की सिचुएशन भी हम देख रहे हैं. लेकिन आपकी खुद की एनर्जाइजिंग, यू आर अ डिफरेंट पर्सन नाउ इन दैट सिचुएशन. एंड हर एक बाद में रुक के कहता है, अगर ये बात पहले आई होती ना तो मैं इस तरह से तो इसको नहीं हैंडल कर सकती थी. सो एवरीबडी सेज, अच्छा हुआ ये बात आने से पहले मेरे पास ये स्ट्रेंथ आ गई थी, तो माई वे टू फेस दिस सिचुएशन वॉज कंप्लीटली डिफरेंट. तो हर एक को अभी व्हाट ऑल सिचुएशंस विल प्रिपेयर, क्या हम ऐसे लोगों को प्रिपेयर करेंगे कि आपके जीवन में घर में कैंसर आया तो आपको क्या करना है, डिप्रेशन आया तो, ऐसा तो नहीं कर सकते. लेकिन आपकी लाइफ में कुछ भी आ सकता है, आपकी फैमिली की लाइफ में भी कुछ भी आ सकता है. अगर आप रोज अपने माइंड को ऐसे इधर 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 लेके जा रहे हैं, रोज एनर्जाइज कर रहे हैं, एंड देयर कम्स एन एग्जाम, यू आर बेटर इक्विप्ड बिकॉज जब आप एनर्जाइज कर रहे हैं, एम्पैथी नेचुरल होने लगेगी, एम्पावरमेंट नेचुरल होने लगेगी. आप चिंता नहीं क्रिएट करेंगे, आप फेथ के साथ चलेंगे, आप सरेंडर के साथ भी चलेंगे, क्योंकि आप सरेंडर वैसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में. आप ग्रैटिट्यूड छोटी छोटी बातों के लिए करेंगे, आज ये अच्छा हुआ, इतना शुक्रिया करेंगे, इतना शुक्रिया करेंगे. आप अफर्मेशन करेंगे, आप मेडिटेशन करके उनको हीलिंग एनर्जी भेजेंगे, क्योंकि ये आप रोज सीख रहे हैं. बिफोर दैट सिचुएशन कम्स, जैसे ही वो सिचुएशन आती है, आप उनके लिए खाना बनाएंगे तो उसमें वो अफर्मेशन डालेंगे. यू हैव ऑल द टूल्स. एंड अब आप उस सिचुएशन को एक बिल्कुल अलग तरह से क्रॉस करते हैं. And the family member also feels that. I know a family in which the child is going through something. So the way the mother handles it and then the way the father handles it is completely different, because mother is practicing daily, father is very good but not practicing that. तो बच्चे को भी दोनों पेरेंट्स के अंदर डिस्टिंक्ट फर्क दिखाई देता है कि मम्मी इस बात को इस तरह से हैंडल करती है, पापा गुस्सा हो जाते हैं, कभी पापा चिंता करते हैं, मम्मी नहीं गुस्सा होती है, मम्मी नहीं चिंता करती है. दैट एनर्जी डिफरेंस हैपेंस not because we have to teach anything, we only have to teach everyone to energize themselves, strengthen themselves. We are better equipped to handle any situation in life. No, like what you but sometimes the fact that we agree to prepare for this in advance, is based on belief, faith. Aapne kaha, you use that way, sometimes you got to just surrender. Because you've got. तो वही सब तो सीखना है ना. पहले सरेंडर सीखना है, फेथ सीखना है, एम्पावरमेंट सीखना है, एम्पैथी सीखना है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटैचमेंट सीखना है. इवन डिटैचमेंट फ्रॉम अ फैमिली मेंबर. एंड डिटैचमेंट इज अनकंडीशनल. जो 2 साल का बच्चा है ना, वो अनकंडीशनल लव इज बिकॉज अभी तक उतनी अटैचमेंट नहीं हुई. अभी देखना 4 साल बाद और अटैचमेंट होगी, और अटैचमेंट होगी. 2 साल का बच्चा बहुत इसीलिए आप बच्चे को देखो, उसके फेस पे कितनी प्योरिटी होती है. वो प्योरिटी है क्योंकि अभी ईगो नहीं है, अभी अटैचमेंट नहीं है. अब हर 2 साल के बाद उसकी फोटो देखो, उसका चेहरा चेंज होने लगेगा, क्योंकि वो प्योरिटी, इनेट, दैट ईगोलेस सोल, वो होता. अभी मैं ये हूँ, वो लेयर्स आएंगे ना, जैसे जैसे अचीवमेंट्स होंगी, फिर हमारा ईगो होता है. एक बच्चा तो अनकंडीशनल लव. इसीलिए आप मार्केट में भी है, कोई बच्चा दिखता है ना, एवरीबडी गेट्स अट्रैक्टेड. वी डोंट इवन नो दैट चाइल्ड रेडिएट्स दैट प्योरिटी, बिकॉज अभी ईगो नहीं क्रिएट हुआ है, अभी क्योंकि आइडेंटिटी कोई नहीं क्रिएट हुई है. चाइल्ड वॉज एबल टू एनर्जाइज एंड एम्पावर. तो ये हर एक कर सकता है. तो ये प्रेपरेशन हेल्प्स इन अ फाइनेंशियल क्राइसिस, ये प्रेपरेशन हेल्प्स इन अ फिजिकल हेल्थ इशू, ये प्रेपरेशन हेल्प्स इन अ मेंटल हेल्थ इशू, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये प्रेपरेशन हेल्प्स टू फेस डेथ of a family member, even your own leaving. It helps to face both. So in the journey from birth to death,
where life exists in between, right? I think, we all have that survival instinct and fear of your own death, of course, and others is really, and the preparations you have to do through that. Many people leave it for the later part of their life. Ki kabhi challenge aati hai, and when I think in your, somewhere the thought must have crossed your mind, how many years do I have, right? I mean, cancer has that. I mean, it asks these hard questions. So it makes you think, makes your family members think, and that's what you said. Us samay aapko, you need the time, you need that. But aaj you're dead. I mean, you're spending your time and effort to get more people energized, just with your own story. So as you're going about this journey, how are you kind of thinking about your own future, right? Because we understood your early days. Today, your podcast, of course, you will take each day as it comes. And you said, but, you're looking 30 years down the road, right? For you, how are you seeing your journey, from here on? I think I'm taking one day at a time. No, I agree. आज का सोचते हैं, कल का सोचते हैं. But ये जो detachment की आप बात करिए, this is something which is on my agenda to achieve. लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ये कभी कभी अचीव भी हो जाती है. लाइक मेडिटेशन यू आर टॉकिंग अबाउट, कोई दिन होता है जब लगता है हाँ शायद 4 सेकंड तक हुई मेडिटेशन आज, आउट ऑफ ऑल द टाइम दैट आई ट्राइड. बट मोर ऑफन देन नॉट ना वो टच एंड गो भी नहीं हो पाता है. एंड आई फील दैट द माइंड इज सो डिस्ट्रैक्टेड ऑल द टाइम कि आप उस स्टेट तक पहुंचना इज वन थिंग, बट उस स्टेट में रहना इज टोटली अनदर. लाइक आज अगर आप, जैसे हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं, you'll see every person in the car sitting behind the wheel will have a different reaction to the same situation. तो वो आप कैसे कर सकते हैं कि मुझे 10:30 बजे कहीं पहुंचना है, मैं फंस गई, अब मैं 15 मिनट आधा घंटा लेट होगी, मेरा पूरा शेड्यूल हिल गया. हाउ डू आई forget being detached with my body, but how do I be detached with these little things? The struggle is constant. अभी तो सिर्फ वो टाइम आया है जब उस स्ट्रगल को मैं रिकॉग्नाइज कर पा रही हूँ. अब उस स्ट्रगल को एक्चुअली फाइट करना है, एंड आई हैव टू क्रॉस ओवर सो दैट एटलीस्ट आई हैव दोज मोमेंट्स ऑफ ग्रास्पिंग दैट लिटिल मोर ऑफन. कभी कभी दिन में 4 सेकंड भी नहीं होता है, कभी कभी दिन में कई बार 1 मिनट 2 मिनट हो जाता है, 1 घंटा भी हो जाता है. द मोस्ट डिटैच्ड मोमेंट्स आर व्हेन आई एम वाचिंग टीवी, बट दैट्स नॉट हाउ इट शुड बी ना. वो डिटैच्ड नहीं है, वो डिस्ट्रैक्टेड है. वो डिस्ट्रैक्टेड है, मगर वो कितना डिस्ट्रैक्ट कर लोगे आप अपने आप को eventually. पर वो सिर्फ डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, वो डिप्लीटर भी है. करेक्ट, एब्सोल्युटली. यू आर जस्ट लाइक, क्योंकि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो. अगर वो हेल्दी नहीं है, अगर उसमें भी पेन है, एनी काइंड ऑफ पेन, करेक्ट, तो वो भी डिप्लीटर है. एग्जैक्टली. तो वो भी एंटरटेनमेंट नहीं है आजकल, वो भी डिप्लीटर है. और इसमें भी क्या होता है कि दैट लाइक आई फाइंड द होल जर्नी ऑफ पॉडकास्टिंग वेरी फुलफिलिंग. लेकिन देयर आर स्ट्रेसफुल मोमेंट्स जब आपको किसी गेस्ट के बारे में एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कैसे इस कॉन्वर्सेशन को अप्रोच करना है. गेस्ट का कुछ और पर्सपेक्टिव है, आपका कुछ और पर्सपेक्टिव है, क्लैश हो गया. तो कैसे उस चीज को अप्रोच करना है कि इट शुड बी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन. देन अगेन यू आर बैक टू द रियलिटी ऑफ रियल लाइफ कि हमको बिजनेस भी सोचना है, व्यूज भी सोचने हैं, रीच भी सोचनी है, कॉन्वर्सेशन भी सोचनी है, मेकअप भी करना है, बाल भी बनाने हैं, साड़ी भी पहननी है. वो सारा आप फिर से मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में आ गए. तो वो एक स्ट्रगल है जो मुझे लग रहा है कि बहुत कांस्टेंट है, और किस हद तक उस स्ट्रगल में जाना चाहिए और किस हद तक नहीं जाना चाहिए वो समझना बहुत मुश्किल है. सो आई थिंक माय करंट, वो स्ट्रगल नहीं है, वो आपकी लाइफ की जर्नी है. आपको पॉडकास्ट करना है, आपको टेक्निकल परफेक्ट सब कुछ चाहिए. सामने जो कुर्सी पे आने वाला है उनको हम जानते नहीं हैं. अब हम आपको पहली बार मिले तो हमें नहीं पता व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर. तो हर एक अलग होगा, हर एक की अलग एक्सपेक्टेशंस होंगी. दिस इज नॉट स्ट्रगल, द वर्ड इज टू बी चेंज. दिस इज नॉट स्ट्रगल, दिस इज लाइफ. ये तो होगा ही. आप हर एक से जिनके साथ पॉडकास्ट करेंगे वो अलग होगा, उनकी एक्सपेक्टेशन अलग होगी, आपको व्यूअरशिप भी चाहिए, सब कुछ चाहिए. दिस इज लाइफ, दिस इज नॉट स्ट्रगल. स्ट्रगल तब लगता है जब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं उन सब से, फिर यहाँ स्ट्रगल है. स्ट्रगल ये स्ट्रगल नहीं है. तैयार होना है ये स्ट्रगल नहीं है, साड़ी पहननी है ये स्ट्रगल नहीं है. आपने उन सब वर्ड्स को स्ट्रगल बोला, इनमें से कोई भी स्ट्रगल नहीं है. ये तो नॉर्मल है, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है. लेकिन उसको करते हुए इफ आई एम गेटिंग अ लिटिल एजी हियर, इरिटेटेड, then it looks like a struggle. Otherwise it looks like a beautiful experience.
अभी हो सकता है ये कैमरे बंद कर दे काम करना, अभी हो सकता है यहाँ से जोर से आवाजें आ जाए, अभी हो सकता है ये लाइट चली जाए, ये सब कुछ हो सकता है, बट ये स्ट्रगल नहीं होगी। ये एक सिचुएशन है जो हो सकती है, इतना सारा टेक्निकल सेटअप है, इसमें से कुछ भी हो सकता है। स्ट्रगल तब लगती है जब यहाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, और जब हम इसको ठीक रखते हैं तो ये सब एक एक्सपीरियंस ही दिखाई देता है। That's exactly what I'm talking about. हाँ. कि ये सब स्ट्रगल है फिलहाल मेरे लिए, you know. अब भी फिर उस लाइन को पहले चेंज करते हैं। कहने का मतलब है कि वोकैबुलरी has a हाँ. big part, because वो Yeah. affirmation वही होता है। आप स्ट्रगल बोलेंगे तो आपको स्ट्रगल स्ट्रगल हो जाएगा। उससे अगर क्या आप बोलेंगे होगा, नहीं, हाँ, आपके पास ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशंस आने लगेंगी बार बार ऐसे, क्योंकि यू आर सेइंग एवरीथिंग इज अ स्ट्रगल। वी से एवरीथिंग इज परफेक्ट। आज का दिन कैसा रहा? परफेक्ट। चाहे उस दिन 10 चीजें गलत हुई होंगी, क्योंकि यहाँ परफेक्ट बोलते बोलते ये परफेक्ट रहेगा। यू नो, वन डे आई वाज सिटिंग इन अ प्रोग्राम ऑन अ स्टेज, होंगे 2-4 हजार लोग सामने, स्टेज पे एक बड़ा शैंडिलियर था, ऊपर ऑडिटोरियम था, अच्छा खासा बड़ा वाला था। और अब हर बार की प्रेपरेशन है कि कुछ भी हो जाए, क्योंकि ऑडिटोरियम है, कभी कभी आउटडोर भी होता है, सामने शादी की बारात चलने लग जाती है, हमने स्पिरिचुअल सेशन करना है, मेडिटेशन, बिकॉज आउटडोर भी होता है ना बहुत कुछ, तो हर रोज की कंडीशनिंग है, कुछ भी हो जाए माइंड रिमेन्स अनटच्ड, स्टेबल, बिकॉज वी आर हियर टू शेयर, वी आर हियर टू गिव। अब एक दिन ऐसे बात करते करते वो पूरा शैंडिलियर चूर चूर हो गया सामने, बात करते हुए चूर चूर, मतलब वो इतना बड़ा था कि उसके कांच तो पूरे स्टेज पर जाकर बिखर गया, और यहाँ तक आया था। साइड पे 2 शैंडिलियर और भी टंगे हुए थे, इट वाज 3 ऑन दैट सीलिंग। इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि आई रियलाइज्ड कि आई डिडंट क्रिएट अ सिंगल थॉट। मैं खुद ही सोच रही थी ऐसे कैसे हो सकता है, एक थॉट तो क्रिएट करनी चाहिए थी, इतना चूर। द होल ऑडियंस वाज स्टन्ड। पहली बात तो लाइक आप बच गए, चलो वो तो ठीक है, वो बड़ी बात नहीं है। आई डिडंट क्रिएट अ सिंगल थॉट, ना उस टाइम ना बाद में। आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज लाइक एक थॉट तो क्रिएट होनी चाहिए थी, बट देन आई रियलाइज बिकॉज वो हर रोज वी आर सेइंग इट कि कुछ भी हो जाए स्टेबल, कुछ भी हो जाए यहाँ नहीं हिलना है, यहाँ सब कुछ हिल सकता है, स्टेज भी हिल सकता है, टूट भी सकता है, अर्थक्वेक भी आ सकता है, बारिश भी आ सकती है। कभी कभी ऑडियंस में किसी को एक somebody has a mental health issue, they start shrieking and screaming, all sorts of things happen. यहाँ कुछ तो हर रोज की वो सालों की प्रैक्टिस। अच्छा, वो जो 1000-2000 लोग थे वो तो डर गए ऐसे एकदम से वो देखकर। मैं कहा सब ठीक है। अच्छा, then they started looking on the other side, ये दोनों में से कोई गिरा तो, so you have 2000 people's energy also coming towards you करके। तो इसीलिए रोज की वो एनर्जाइजिंग एंड रोज की मेंटल, दैट्स व्हाई इफ यू कीप सेइंग ना स्ट्रगल है, तो वो आपको स्ट्रगल फील होगा। सिचुएशन तो जो आने हैं वो आएगी है, बट अगर मैंने बार बार बोला वो स्ट्रगल है, तो मुझे वो डीप सबकॉन्शियस में जाती है वो कोडिंग। इट्स नॉट जस्ट अ थॉट। एक बार बोलेंगे तो इट्स अ थॉट, लेकिन बहुत बार बोलते हैं जिसको हम अफर्मेशन बोलेंगे, वो हमारी कोडिंग में चली जाएगी, मेरी पर्सनालिटी बनेगी। सो हम छोटा सा चेंज करते हैं आज से, बातें ऊपर नीचे हो जाएंगी, चीजें ऊपर नीचे हो जाएंगी, टूट फूट भी हो जाएगा, सब गलत भी हो सकता है। हम स्ट्रगल वर्ड नहीं अटैच करेंगे उसके साथ। हमारे एक ही जिम्मेवारी है, इसको परफेक्ट रखना। बाहर की दुनिया में सब कुछ सारा दिन परफेक्ट हमारे हिसाब से चले, ऐसा वैसे भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो परफेक्शन हम कहाँ ला सकते हैं, बाहर या स्थिति में। दैट्स द ओनली थिंग इन माय कंट्रोल। हाउ मच एवर यू वर्क हार्ड ऑन सेटिंग दिस अप, पूरी रात भी काम कर लो तो भी जब होगा तो कुछ ना कुछ होगा। इट्स ओनली वन प्लेस वे यू कैन हैव परफेक्शन, सो जस्ट कीप इट ओवर देयर। फिर ये सारी चीजें बड़ी नहीं लगती हैं। जब हम यहाँ परफेक्शन नहीं रखते ना, तो छोटी चीज भी बहुत बड़ी फील होती है, और जब हम यहाँ रखते हैं तो बड़ा नुकसान भी छोटा फील होता है। इट्स ऑल इन प्रोपोर्शन टू माय ओन स्थिति, माय ओन एनर्जी। पुट इट लाइक दैट, इट साउंड्स वेरी सिंपल, बट यही मैं बोल रही हूँ, यही अचीव करना है कि जो स्टेट ऑफ माइंड है, जहाँ होना चाहिए वहाँ रहे constantly. As you were talking, right, when you realize you're just that small speck in the universe, living, death, you suddenly feel all of this, right? आप बोले हर एक को अलग अलग चीज ट्रिगर होती है, और हमारी वोकेबुलरी ही हमारी स्ट्रेंथ है, बट हमारी वोकेबुलरी भी, this is a very big takeaway for me, to choose the words right. Yeah, because that is it. Now see, आपने कहा कि when you're watching, you're detached, right? You said, you are distracted. Someone will say disturbed, right? Because the content you're watching
is probably disturbing you, but you are not realizing it, right? आपने शुरू में कहा था कि and today when you talk of unconditional love, right? We talk of love, and today we've got a lot of young audiences. In many cases, love is attachment. Love is being connected. Love is being there for each other all the time, both emotionally and fully emotionally. So if something is wrong with you, how can I be right? If you're not well, I also have to feel low. How can I be happy or not happy? But I cannot even be stable. I mean, many young people will say that, and people will say, how can you, I am going through this problem. But we realize that the only way that person can give the strength is if that is unconditional love. So do you want love which is attached, or you want unconditional love which is detached? I mean, and unconditional love becomes power. Very important. Today we are discussing these terms, and these are all different content. Detachment also is something which is very not understood. Not understood. Yeah. So I want to ask you कि detachment की जब आप बात करते हैं तो detachment, okay, now we are all living in the real world, right? We all have jobs, we all need to make money, we all need to support our families financially. तो काम तो आपको करना है, ठीक है? तो डिटैचमेंट क्या काम से भी करनी होती है कि डिटैचमेंट सिर्फ उस इमोशन से करनी होती है जो काम से अटैच्ड है? डिटैचमेंट का मीनिंग ये है कि वो चीज मेरे माइंड को अफेक्ट नहीं करेगी, दैट इज डिटैचमेंट. काम तो सुबह से रात तक करना है, पूरे परिवार के साथ रहना है, सबका ध्यान रखना है. दो चीजें. अटैचमेंट ऐसे होती है जैसे कभी कभी दो बच्चे जुड़े हुए पैदा होते हैं, अटैच्ड पैदा होते हैं ना, तो उनको सब कुछ इकट्ठे करना पड़ता है. इट्स नॉट अ कंफर्टेबल लाइफ. तो उनकी सर्जरी की जाती है और वो सेपरेट किए जाते हैं. अब एक बैठेगा, एक खड़ा हो सकता है, एक घर रह सकता है, दूसरा स्कूल जा सकता है. विच वन इज कंफर्टेबल? सेपरेट होके ही कंफर्टेबल है. ये तो लेकिन बहुत अच्छा था, सारा दिन जीवन भर ऐसे इकट्ठे रहो. बट नो, इट्स वेरी अनकंफर्टेबल. दिस इज वेरी कंफर्टेबल. इसी तरह अटैचमेंट मीन्स दोनों मन अटैच्ड हैं. अटैचमेंट मीन्स मैं अपने काम के साथ मेरा मन अटैच्ड है. अटैचमेंट मीन्स ये इक्विपमेंट परफेक्ट होनी चाहिए, इस एक्सपेक्टेशन के साथ मेरा मन अटैच्ड है. अब जैसे इक्विपमेंट परफेक्ट नहीं होगी क्योंकि मेरा मन उसके साथ अटैच्ड है, मेरा मन भी परफेक्ट नहीं होगा. तो डिटैचमेंट ओनली मीन्स दिस कि मेरे मन की स्थिति इस इक्विपमेंट पर डिपेंडेंट नहीं है, मेरे मन की स्थिति इस काम पर डिपेंडेंट नहीं है, मेरे मन की स्थिति इस पर्सन के इमोशन पर भी डिपेंडेंट नहीं है. That is detachment. It doesn't mean moving away from people and moving away from work. It just means your mind is not dependent on them. And then you're able to keep your mind fine even if this is not going right. क्योंकि अब आप separate हो गए ना. पर आप ये नहीं बोलेंगे you're upset so obviously I'll also feel low. No, आप बोलेंगे you're upset so I have to be powerful. So focusing on what your objective is, focusing on what your aim is, not being attached until and unless it starts disturbing you when you don't achieve it. Right. Or anything doesn't go your way. Right. Like traffic road pe, not your way. बिल्कुल. Enjoy the drive. Okay. उस समय को भी use कर लो. No, this is, we can keep like going on. I have sorry, two more minutes. I have my hoardings put up in Mumbai right now for a few days. तो कल मैं अपने बच्चों को लेके गई दिखाने के लिए, and my son was so disinterested. He said, I have to go meet my friend. It's my gym class, mama. I said, बेटा मम्मा की hoardings लगी हैं. And he said, what is a hoarding? I said, it's a big picture. Don't you see those big pictures on the road? Okay, you take me tomorrow. You get a picture from me or anything. And मतलब मुझे भी उस चीज से कोई मतलब ऐसा नहीं था कि I'm thrilled and I'm excited and I'm ecstatic and I was feeling that where is that emotion in me? Why is it dead? The last time the hoardings were put up, I was so ecstatic. I did a vlog on it and I messaged everybody, all my friends and everything. तो अब मुझे लगता है कि नहीं, वो hoarding लगी है, purpose से लगी है और वो purpose मेरा achieve होना चाहिए, and that is important. So I'm thinking, is he the one who's detached or am I detached enough? I mean, am I understanding it correctly? He is detached because he's not yet understood it, but you're going to get detached after understanding it also. जब वो बड़ा हो जाएगा, अगर उसकी होर्डिंग लगेगी, शायद उसको उतनी ही एक्साइटमेंट होने वाली है. See, again, that's सिर्फ डीप इंसिक्ट. आज जिस चीज से एक्साइटमेंट होती है ना, कल उसी चीज के नहीं होने से फिर दर्द भी उतना ही होता है. तो डिटैचमेंट मीन्स मन की स्थिति को सेंटर में रखें. तो इसे पेंडुलम को सेंटर में रखो. आज अगर होर्डिंग देखकर वो 60 डिग्री इधर जाएगा,
कल जब होर्डिंग उतरेगी तो वो 60 डिग्रीज इधर जाएगा, आज जब महिमा मिलेगी वो 60 डिग्रीज इधर जाएगा, तो क्रिटिसिज्म मिलेगी तो वो 60 डिग्रीज इधर जाएगा. डिटैचमेंट मीन्स दोनों के टाइम सेंटर में रहेगा. दैट इज डिटैचमेंट. इसका मतलब ये नहीं होर्डिंग नहीं लगानी है. दैट इज नॉट डिटैचमेंट. हर शब्द पे we can have one podcast. Literally. Over to your questions. No, I think we've had a wonderful conversation. We'll move to the last section of our podcast, which we call Mindful Minute. We'll just, have a few questions where, maybe some shorter, crisper answers, from some of the things that maybe audiences also would like to hear. To begin with, your name is pretty, not unique, but it's very interesting because Chhavi means reflective, at least that's what, we found. But what did Chhavi mean to you before cancer and Chhavi after cancer? Before cancer, I think I was just floating aimlessly without a purpose. And after cancer, there's some purpose attached to my life. I can say that उतना कभी किसी चीज को thought ही नहीं दिया pre-cancer. I was 42 when I got my cancer. So 42 years, there was no thought. जो आया कर लिया, जो आया, 3 options हैं, एक choose कर लिया, वैसी life थी. There was no drive to decide what I want and make my options and create opportunities, which is something I started post the cancer. So I would say that I'm still a traveler, but a traveler who's deciding the destination that she wants to get to. So how do you make those choices today differently? Very simple. What is the impact that it's making in my life? How is it making me grow? And what is the impact that it's making in somebody else's life? Is it a good impact, a bad impact? Is the message that's coming across bad in some way? Or is it open to interpretation? Or is it positive? Open to interpretation, great. Positive, great. If it's thumbs down, then no. Is there a misconception that, people have about Chhavi that you would love to change? Honestly, people can think whatever they want to think about me, and that's something that I learned not from cancer but from my social media journey. कि 100 likes आते हैं, उसमें से मतलब 20 dislikes भी आते हैं. कोई खुश होगा, कोई खुश नहीं होगा. I don't really care what they think about me, as long as I am happy with what I'm doing and as long as my conscience is clear, then that's all that matters. If your journey could leave one lasting message, right, for the world, of course it's still early, you've got a long way, what would that be? I think if you put your mind to something, nothing is unachievable. Very beautiful. I think that creates the essence of everything that we have been trying to do. I even call this section Mindful Minute. And you kind of hit the nail on the head, and I think that's our whole objective through this conversation, is to see how we can really talk about the focus of the mind, the power of the mind, the ability to distinguish the mind from body, and we all have a mind, which is as pure as, it gets when it is there. But when things go south, we should not mind. So we should not mind, and we can keep having a word game around it. But we will leave it to Sister Shivani to conclude and give us your last words on what we've just discussed, and of course on our guest Chhavi and her life. See, what she's created is like what she shared was that I'm changing as a person post that karmic account. That cancer coming is our karmic account. It's over, it's healed. Changed as a person, changed priorities in life. And अब बहुत detached होके उनको दिखाई दे रहा है कि पहले I was doing good work, appreciation मिल रही थी, जीवन बढ़िया चल रहा था, लेकिन अब उस वर्क में डेप्थ आ गई है, उस वर्क में अब देने की एनर्जी आ गई है. अभी तक उस वर्क में ज़्यादा लेने वाली एनर्जी थी, इसलिए व्हेन शी सेड नाउ इट हैज पर्पस, वो चेहरा कैसे, सी दैट फेस जो होता है ना, वो इनेट की खुशी जब चेहरे पर आती है, बिकॉज यू शिफ्टेड फ्रॉम दिस टू बिकमिंग दिस. पहले हमें उस काम से रिकग्निशन मिल रही थी, नेम फेम मिल रहा था, पैसे भी मिल रहे थे, सब कुछ मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था,
और हम लोगों को एंटरटेन कर रहे थे। और अब उनको लोग आके क्या कहते हैं, हमने आपका वो पॉडकास्ट देखा। पर उन्होंने तो बहुत सारे सीरियल भी देखे होंगे पहले, लेकिन सीरियल लोगों को एंटरटेन करते हैं, विच इज़ ब्यूटिफुल एज वर्क, वो बहुत अच्छा है। लेकिन जो वो लर्निंग का पॉडकास्ट कर रहे हैं, वो किसी के अंदर कुछ चेंज लेकर आता है। तो जब आप देने की एनर्जी से करते हैं तो सामने वाले को भी कुछ मिलता है, क्योंकि आपने देने की एनर्जी से किया। जब आप लेने की एनर्जी से करते हैं तो आप उनसे ले ही रहे हैं, आप उनको कुछ दे नहीं रहे, क्योंकि आपने देने की एनर्जी से किया ही नहीं था। सो जैसे ही देने की एनर्जी के मोड में जाते हैं तो फिर वो फेस पर वो कंटेंटमेंट, वो खिला हुआ और ये एक्सेप्ट करना कि माई लाइफ आफ्टर दैट फेज इज एक्चुअली नाउ मोर मीनिंगफुल। दिस इज द प्योरिटी ऑफ द सोल। Otherwise, we could finish the treatment and go back to being the same person. Not that working is wrong. It's just that that deeper purpose that she has attached to it, that's very beautiful. So that's a Chhavi, that's a reflection of your purity of the soul. अब उस purity के साथ थोड़ा सा power add करेंगे ना, तो ये detachment वगैरह तो normal हो जाएगा. That's power on the cards. plus purity, all the P's added to the new Chhavi, which is there. Thank you. Thank you, Sister Thank Shivani. you. Thank you, Thank you Chhavi, so for much. such a Thank you. wonderful Thank you. conversation. You too can start or enhance your mindfulness journey using the ThinkRight app on iOS and Android store. It's got a huge number of daily affirmations, daily journeys, daily meditations that will enable us to hold your hand as you move in this transformative journey of life.